Jai Hind everybody. So as you all know, we have already started the second chapter of biology class 11, that is biological classification. So in this chapter we have discussed different kingdoms, the characteristic of different kingdoms, that is your Monera, Protista, fungi, plantae kingdom. Now there is another set of organism, that is virus, viroids, prions and lichen. Now these organism, they are not included in five kingdom classification. uh, they do not got any position in the five kingdom classification because they are non-cellular in nature, and these organisms, they show inert crystalline characteristic outside the living organism, means they need a host. उनको एक होस्ट चाहिए होता है, लिविंग होस्ट चाहिए होता है to carry their life cycle. And when they get that living host, they start multiplication, reproduction. And when they are outside the living host, they are considered not alive. ठीक है, वो अलाइव नहीं होते हैं, वो ओनली they show living characteristic once they are inside the living host. Now the name virus is termed by a scientist, that is DJ Ivanovsky. He was the scientist who termed the name virus, who gave the name virus to these infectious organism. Now this virus also means venom or poisonous fluid. So how he recognized these microbes, when he studied plant the plant tobacco. In that he found the mosaic pattern in the leaves, that is the mosaic pattern, येलोइंग ऑफ लीव्स, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें जैसे मोज़ैक होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो होते हैं उसमें, ऐसे ही लीफ में वो पैटर्न दिखा. और फिर व्हेन ही स्टडीड दोज पैटर्न्स, देन ही फाउंड आउट कि द ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज mosaic pattern is virus. So he gave the name virus to such organism. Now there was one more scientist, M.W. Beijerinck. So in 1898 he demonstrated that the extract of infected plant can cause infection and call the fluid as contagium vivum fluidum. So इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ पता लगाई, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स थे वायरस से, जो भी वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट्स थे, उनका एक्सट्रैक्ट उन्होंने टेस्ट किया, एक्सट्रैक्ट उन्होंने उसका बनाया, और उसको जब हेल्दी प्लांट में उन्होंने टेस्ट किया तो ही फाउंड आउट कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया. तो तब उन्होंने ये जो एक्सट्रैक्ट था, ये जो फ्लूइड था, उसको उन्होंने नाम दिया कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम, मीन्स कंटैजियस है. अगर ये किसी हेल्दी प्लांट के संपर्क में आ जाएगा तो इसमें भी डिजीज़ हो जाएगी, इसीलिए उसको नाम दिया कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम. नाउ देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट, W.M. Stanley. In 1935 he found out that virus could be crystallized, and crystals, the crystals, they consist of proteins. ठीक है, इसमें जो है प्रोटीन जो है जो यू कैन से जो DNA जो अंदर होता है, दैट इज़ अब प्रोटीन कोट होता है, और वो जो है छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स. नाउ दीज वायरसेस, दे आर टर्म्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट. नाउ व्हाट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स? वो होते हैं जिनको होस्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए. अगर उनको होस्ट ना मिले तो दे डोंट लिव, वो मर जाते हैं. सो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स that need a host. So virus are the obligate parasite. Now in addition to proteins के अलावा वायरस में genetic material भी होता है, and that genetic material is either in the form of DNA or RNA. Now the virus which infect the plants, जनरली जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें जो DNA होता है, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आई विल से दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंडर्ड RNA होता है. और जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्ट्रैंडर्ड DNA होता है.
Okay, now the next thing, that is, now the disease which virus cause, the commonly caused viral disease like common cold, flu है, influenza, AIDS, पॉक्स, मीजल्स, ये कुछ कॉमनली वायरल कॉज डिजीजेज हैं इन ह्यूमन बींग्स. इफ़ यू से प्लांट्स में लीफ रोलिंग, कर्लिंग, ये कुछ डिजीजेज हैं. नाउ there are viruses which feed on bacteria also. So such viruses are known as bacteriophage. This is very important. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया फीडिंग वायरसेस को क्या बोलते हैं. So they are termed as bacteriophage, and here the genetic material, it is usually double stranded DNA. Now these viruses, they have a protein code. प्रोटीन कोड होता है इसमें कैप्सिड, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. और ये जो कैप्सिड्स होते हैं ये स्मॉल स्मॉल यूनिट से बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर. नाउ दिस कैप्सोमियर, इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. जो भी उसमें अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, वेदर डीएनए और आरएनए, वो ये कैप्सोमियर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है. एंड दीज कैप्सोमियर्स, इफ़ यू विल सी द figure, these capsomeres are arranged in a polyhedral geometric form. ठीक है, polyhedral जैसे डायमंड का शेप होता है, कुछ उस तरह ये polyhedral geometric forms में ये अरेंज रहते हैं ये कैप्सोमियर्स. ओके, सो यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियोफेज. नाउ यू कैन सी दिस इज अ हेड जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और ये हेड है, ये बहुत सारे यूनिट से बना होता है कैप्सोमियर. ये अंदर इसके न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज डीएनए. दिस इज अ कॉलर एंड इट इज़ अ शीथ. नाउ हेयर इट इज़ अ बेसल प्लेट, और इसमें ये जो निकले हुए दे आर स्पाइक्स. एंड दिस इज़ अ टेल फाइबर जो कि एंकरिंग का काम करता है होस्ट बॉडी से. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियोफेज. ओके, now let's talk about another group of organism, that is viroids. now viroids जो हैं ये साइंटिस्ट थे टी ओ डैनियर. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन 1971 वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था. नाउ ये भी दे आर ऑल्सो द इन्फेक्शियस एजेंट्स, और ये वायरसेस से छोटे होते हैं. द साइज इज स्मॉलर देन वायरस, इट इज़ स्मॉलर देन वायरस. और वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, यू शुड नो दिस. और इसीलिए वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास भी हो जाते हैं. इसीलिए उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं पढ़ते हैं, हम इनको सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं, क्योंकि दे डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग. ये भी एक क्वेश्चन है कि वायरसेस को हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे ओनली शो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक व्हेन दे आर इनसाइड द होस्ट, इनसाइड द लिविंग होस्ट, otherwise they are dead. That's why they are termed as sub microorganism, not microorganism. Okay, now these are the smaller, these viroids, they have the size smaller than the virus, and they cause potato spindle tuber disease. now इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, you need to learn the diseases, name of the diseases caused by these organism, and also the name of the scientist who has discovered them. now they cause potato spindle tuber disease, and in this a free DNA, free RNA is present. that means there is no कोड, आउटर कवरिंग नहीं होती है, नो प्रोटीन कोड इज प्रेजेंट. आरएनए जो है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए जो है वो फ्री होता है. दे लैक प्रोटीन कोड, एंड इट हैज़ this RNA has a low molecular weight. So this is the characteristic of viroids. Now coming to the next organism, that is prions. Now these prions, they consist of folded proteins, abnormally folded proteins होते हैं, not in a regular way, and their size is almost similar to virus. you can say they are almost similar to the size of the virus. now they cause disease in plants also and in animal also. So the name is very important. if you talk about plants, they cause bovine spongiform encephalopathy. बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम BSE भी बोलते हैं, और इस डिज़ीज़ को हम कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिज़ीज़, जो कि कैटल्स में पाई जाती है ये डिज़ीज़. एंड दिस डिज़ीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रियॉन्स.
नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स में सियार जैकॉब डिजीज़ होती है जिसको CJ डे भी बोलते हैं. Okay, this is the name of the disease which is caused in human. Now these organism, they are the infectious organism and they are responsible for causing the neurological disease. ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं जो कि ये कॉज करते हैं. Now coming to the last set of organism, that is lichens. Now lichens are also kept separately because they show symbiotic association. As you all know, ये symbiotic association show करते हैं algae और fungi में. ना ही ये algae है ना fungi, but they are formed by the close contact, या ये algae fungi जो हैं दोनों बहुत ही closely आपस में अटैच रहते हैं और ये बनाते हैं लाइकेन. Now here the algae and fungi, as you all know, algae is autotrophic, so it manufacture its food. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. बट फंजाई जो है इट इज़ हिट्रोट्रॉपिक, सो इन दोनों में बहुत क्लोज एसोसिएशन देखा गया है जिसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं. एंड इन दिस एसोसिएशन बोथ द पार्टनर्स दे हेल्प ईच अदर. इनमें म्यूचुअलिज्म पाया जाता है. म्यूचुअलिज्म का मीनिंग होता है एक दूसरे की हेल्प करना. ओके, नाउ कैसे ये दूसरे की हेल्प करते हैं? एल्गी बीइंग ऑटोट्रॉपिक, वो खाना खुद बनाता है तो वो एक तरह से जो है फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को. एंड फंजाई जो है हिट्रोट्रॉपिक होता है, वो एल्गी को शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है. सो इन दिस वे दे हेल्प ईच अदर विदाउट हार्मिंग देम. दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. नाउ द एल्गल पार्टनर इज नोन एज फाइकोबियोन्ट and the fungal partner is known as mycobiont. फाइको मीन्स एल्गी होता है, ओके, एंड माइको मीन्स फंजाई होता है. इसीलिए इनकी स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी भी कहा जाता है. नाउ दीज लाइकेंस दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर. मीन्स अगर लाइकेंस कहीं प्रेजेंट है और अचानक से वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ जाएगा, तो वहाँ से आप देखेंगे लाइकेंस जो हैं वो गायब हो जाएंगे अपने आप. तो पहले प्रेजेंट होना और फिर गायब हो जाना ये शो करता है कि नाउ दैट एरिया हैज़ बिकम पोल्यूटेड, सो दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया. और अगर वो गायब हो जा रहे हैं इसीलिए हम इनको गुड पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं. So this is all about these microorganisms. So with this we have completed the second chapter. Now about the kingdom Plantae, that we are going to study in detail in the third chapter. There is a separate chapter for kingdom Plantae and kingdom Animalia. So we will be studying in that. So hope you all have understood this chapter. So this is all for today. Thank you.